Good morning, students. So in yesterday's video we have seen about the contact forces, and I told you that we mainly discuss the two forces, that is muscular force and force of friction, that comes under the contact force, where the two bodies they are in direct contact with each other. Now comes the non-contact forces. Okay, so I have already given you some examples, that is magnetic force, electrostatic force and gravitational force. So one by one we will discuss about them in detail. Okay, so magnetic force is the force which is exerted by the magnet. So you are already aware about this force, right? So the force which is exerted by the magnets. So force of attraction and repulsion between two magnets is known as the magnetic force. Force exerted by a magnet on a piece of iron or steel. Okay, so already you are knowing this fact that there are two poles in the magnet. One is south pole and one is north pole. Okay, so attraction always takes place between the same pole, opposite poles, right? And repulsion takes place between the same poles. For example, you can see here this force of attraction. This is north and this is south pole. So these poles are opposite. So there will be a force of attraction. Okay, and if you see, if the poles that north, it is also north, so the attraction will not be there. There will be the force of repulsion, means they will repel each other. So what does this means? North and south, they attract each other. So direction will be like this: north and north, they will repel each other. South and south, they will repel each other. Okay, so this is the magnetic force. Okay, in higher classes you will have a detailed study about them. एक कॉमन सी चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ मैग्नेटिक फोर्स में जो है, जैसे ये मैग्नेट होता है, मैग्नेट के ये दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. अब अगर आप बोलो कि मैंने उस पीस को काट दिया है, जैसे ये आपके पास मैग्नेट है, इसको आप बीच में से काट दो, तो आपने बोल दिया कि मैंने नॉर्थ पोल काट दिया, अब मेरे पास सिर्फ साउथ पोल बचा है. तो ऐसा कभी भी नहीं होता है. जो मैग्नेट होता है हमारे पास, मैग्नेट हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करता है, मतलब इसके दो पोल रहेंगे. अगर आप इसको बीच में से काट देते हो तो ये पोर्शन जो होगा दैट विल बिकम नॉर्थ एंड ये साउथ. ठीक है, तो वो उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, चाहे आप उसको कितने भी छोटे पीस में काट दो. ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसके एग्जिस्ट करेंगे. हायर क्लासेस में आप ये भी पढ़ोगे कि हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा इसका नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है. ठीक है, so this in this standard you need to study that magnetic force. Magnetic force means the force exerted by the magnets. Then comes the electrostatic force. ठीक है, so you can remember this by this name of this force itself, that is electrostatic force. Electrostatic force is the force exerted by a charged body on another charged or uncharged body. ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है ये चार्जेस के बीच में होती है, दैट यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है, दिस फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द चार्ज बॉडीज. अब चार्ज बॉडी, जो दो बॉडीज के बीच में, जिनके चार्जेस के बीच में ये फोर्स एग्जिस्ट करती है, वो दोनों बॉडीज चार्ज भी हो सकती है और एक बॉडी चार्ज और दूसरी बॉडी अनचार्ज हो सकती है. लेकिन दोनों बॉडी अनचार्ज होंगी तब ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी. दो कंडीशन है, आइदर बोथ ऑफ द बॉडीज आर चार्ज्ड और आइदर वन बॉडी इज चार्ज्ड और अदर बॉडी इज अनचार्ज्ड. So in that case this force exists. A plastic straw charged by rubbing with paper, okay, means you are taking a plastic straw, you are rubbing that with the paper, that attracts a suspended plastic straw. ठीक है, तो ये एक्टिविटी से भी करके आप देखा हुआ है. तो आपको इसने एक बहुत सिंपल सा बताया हो कि प्लास्टिक स्ट्रॉ जो है आपके पास, आपके घर पे आपने देखी होंगी, नॉर्मल कंडीशंस में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती हैं. लेकिन आपने क्या किया, आपने एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को लिया एंड यू चार्ज दैट. तो आप उसको चार्ज कैसे करोगे, आपने उसको रब किया थोड़ा सा
किसी भी पेपर के ऊपर रब करने से क्या होगा, वो उसकी चार्जिंग हो जाएगी, उसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो जब उसको फिर आप अट्रैक्ट से जब आप उसको एक दूसरी स्ट्रॉ के पास लेके जाओगे जिसको आपने सस्पेंड किया हुआ है, यहाँ पे देखिए आपने सस्पेंड किया हुआ है इसको, तो ये इधर को चली जाएगी। क्यों? बिकॉज ये चार्ज स्ट्रॉ है और ये इसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो देखा आपने, ये चार्ज स्ट्रॉ है, दिस इज चार्ज्ड वन, और ये अनचार्ज थी, इसको पहले ऐसे सस्पेंड किया हुआ था। लेकिन जैसे आप इस चार्ज उसको उसके पास लेके गए तो क्या हुआ, ये इसकी डायरेक्शन जो है वो फिर इस तरफ को हो गई, बिकॉज इट इज़ अट्रैक्टिंग दिस। और जब आपने प्लास्टिक स्ट्रॉ चार्ज विद रबिंग विद पेपर रिपेल से सस्पेंडेड प्लास्टिक चार्ज बाय रबिंग विद पेपर। अब आपने क्या किया, ये दोनों स्ट्रॉ जो है यहाँ पे पहले इसको, ये जो चार्ज थी, ये जो स्ट्रॉ थी दैट वाज अनचार्ज्ड, ठीक है। लेकिन अब ये जो है आपने इसको भी चार्ज कर दिया पेपर के साथ रब करके, और इसको भी चार्ज कर दिया पेपर के साथ रब करके। अब क्या हुआ, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है। तो चार्ज दोनों होंगी तो मतलब दोनों बॉडीज चार्ज हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। और अगर एक चार्ज है एक अनचार्ज है तो उस केस में क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। ये आपके इस कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि क्यों ये रिपेल और अट्रैक्ट करती हैं। होता क्या है कि जब आपने इस प्लास्टिक स्ट्रॉ को चार्ज किया तो इसके ऊपर, चार्ज करने का मतलब क्या है, इसके ऊपर या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे या फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगा। नो, इट डिपेंड करेगा कि ये किस बॉडी का बना हुआ है, ठीक है। तो अब प्लास्टिक को जो इस स्ट्रॉ को जब आपने चार्ज किया तो उस केस में क्या हुआ कि इसने कुछ चार्ज एक्यूमुलेट कर लिया। सपोज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये चार्ज होगी मतलब क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब आपने इसको अनचार्ज स्ट्रॉ के पास लेके गए। अब अनचार्ज स्ट्रॉ जो होगी उसमें क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल होगी। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा, इसके जो अनचार्ज है इसके ऊपर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों क्वांटिटी में है, उन चार्जेस को ये से वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। इसके ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है या फिर नेगेटिव चार्ज, जो भी एक चार्ज एक्यूमुलेट होगा, जब आप इसको अनचार्ज के पास लेके गए तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं है। इसके साथ जो चार्ज इसके पास ऑलरेडी है चार्ज, लेकिन वो न्यूट्रल है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन इक्वल क्वांटिटी में है, ठीक है। तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है उससे ये पॉजिटिव जो होगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा। दूसरे केस में क्या किया, हमने बोला कि हमने दोनों को चार्ज किया, दोनों में को चार्ज किया मतलब दोनों में चार्ज एक्यूमुलेट होगा। इसमें पॉजिटिव हुआ तो इसमें पॉजिटिव हो जाएगा जब हम इसको चार्ज करेंगे। हमको पता है पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसीलिए ये दोनों जो होंगे एक दूसरे को, दोनों जो होंगी वो रिपेल करेंगी क्योंकि दोनों चार्ज हैं और सेम मटेरियल की हैं, इसीलिए रिपेल करेंगी, ठीक है। अगर ये अलग मटेरियल की बनी होती, ये प्लास्टिक की अगर ये अलग मटेरियल की बनी होती तो हो सकता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता और इसके ऊपर पॉजिटिव, तो वो अट्रैक्ट भी कर सकती थी। लेकिन सिंस ये दोनों एक ही मटेरियल की बनी हुई हैं तो दोनों के ऊपर चार्ज भी एक ही आएगा। अगर नेगेटिव आएगा तो दोनों पे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो दोनों पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो चार्ज की वजह से वो रिपेल करती। यहाँ पे एक ही को चार्ज किया है हमने, ठीक है, और ये अनचार्ज है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। यहाँ पे दोनों चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अब 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे कि कौन सा बॉडी जो है या कौन सी मेटल है वो किस तरह से वो चार्ज लेती है या लूज़ करती है, तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है उस पर डिपेंड करता है। उसके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके बैलेंस शेल में, अगर ज़्यादा होते हैं उसके पास देने की कैपेसिटी है तो वो इलेक्ट्रॉन दे देती है, अगर उसके लेने की कैपेसिटी है तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेती है, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर चार्ज आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बट लेट्स हैव सम लुक। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स, यू नो दिस राइट। सो इट पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ। तो वो फोर्स जिससे अर्थ सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को हमने एक नाम दिया विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। ए कॉइन और पेन फॉल्स डाउन व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड,
A ball thrown upward falls down. Leaves and fruits fall to the ground when they get detached from the plant. Water in the rivers that always flow in the downward direction. So all these are examples of gravitational force. Then comes the pressure. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ प्रेशर. प्रेशर क्या होता है? अगर आपको फोर्स समझ में आ गया है तो आपको प्रेशर को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो है दैट इज़ ऑल्सो द काइंड ऑफ फोर्स. लेकिन फोर्स के साथ जो है हमने एक चीज़ और एसोसिएट कर दी है, उसको थोड़ा सा और रिफाइन कर दिया है, आप ऐसा बोल सकते हो. तो उसके साथ मिला दिया हुआ है हमने, और उसको हमने उसके विद रिस्पेक्ट चेक करना है. अभी तक तो हम फोर्स की बात कर रहे थे, मैंने पुल किया या पुश किया तो उस चीज़ को हमने बोल दिया फोर्स. ठीक है, लेकिन अब ये पुल और पुश कितना है, कहाँ लग रहा है, कितने एरिया पे लग रहा है, उसको हमने जब साथ में स्टडी किया तो हमारे पास एक नई टर्म निकल के आई जिसको हमने बोला प्रेशर. ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास है. प्रेशर इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस. ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं, फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाते हैं तो किसी सरफेस के ऊपर ही लगाते हैं. हमने क्या किया, एक थोड़ा सा मेजरमेंट कर दिया उसका कि यूनिट एरिया में कितनी फोर्स लग रही है. ठीक है, आप एरिया तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दिया कि यूनिट एरिया में कितनी फोर्स लग रही है, उसको हम बोलते हैं प्रेशर. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन बन गया हमारे पास. प्रेशर मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया. मतलब एक यूनिट एरिया में कितनी फोर्स लग रही है उसको हम बोलते हैं प्रेशर. ठीक है, अब एक चीज़ इसमें बहुत अंडरस्टैंड करने वाली है, ध्यान रखने वाली है, दैट इज़ हमने बोला प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया. अब ये दोनों चीज़ें जो होती हैं एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको. ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या आता है कि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, कब? जब एरिया कम होगा. ठीक है, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा. मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास है. ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक के बढ़ने से दूसरी कम होती है, और एक के कम होने से दूसरी बढ़ जाएगी. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेशर. ठीक है, इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि सपोज़ आपके पास एक वुडन ब्लॉक है जिसका, जैसे आप पेंसिल ले लो, आपके पास एक पेंसिल है, आप ये समझ लो कि वो पेंसिल भी छोड़ो, आप एक नेल ले लो. ठीक है, आपने एक नेल लिया, आपने उस नेल को दीवार के अंदर डालना है, लगाना है. ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है. आपने देखा ऊपर वाला जो एक एंड होता है नेल का, दैट इज़ फ्लैटन एंड वन इज़ शार्पन. तो आप कौन से एरिया से नेल को वॉल में लगाते हो, विच इज़ शार्पन. ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना एरिया कम होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा. अगर आपने नेल को उल्टा करके जो फ्लैटन एरिया है उसको आपने दीवार पे रख दिया, दीवार के ऊपर आपने वॉल के ऊपर उसको लगा के, फिर हैमर से जो पतली वाली साइड उसके ऊपर हैमर से आप टैप करते हो और उसको डालने की कोशिश करते हो दीवार, तो क्या वो अंदर जाएगी? हो सकता है बहुत एफर्ट करने के बाद चली भी जाए, लेकिन उस केस में क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन वो उतनी जल्दी नहीं जाएगी जितना जल्दी ये पॉइंटेड जो साइड है नेल की उसकी वजह से जाएगी. क्यों? क्योंकि जितना एरिया कम होता है प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता है. ठीक है, अब दोनों के केस में क्या है, जो पॉइंटेड है उसमें एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा. अब फ्लैटन के केस में एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा बॉल के ऊपर. तो इन दोनों का जो है आपस में इन्वर्सली रिलेशन होता है. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप प्रेशर और फोर्स की बात करो, फोर्स अपॉन एरिया, ये दोनों क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा. ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फोर्स जितनी ज़्यादा लगाओगे आप, प्रेशर उतना ही ज़्यादा दूसरी बॉडी के ऊपर लगेगा. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है प्रेशर और एरिया का. इफ़ द एरिया इज स्मॉलर द प्रेशर इज मोर ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स. ठीक है,
It is easier to push a nail into a wooden plank by pointed end than its head because the pressure is more. समझ गए ना ये वाला एग्जांपल आप नेल के केस में, ठीक है। दूसरा देखिए, इट इज़ ईजियर टू कट वेजिटेबल्स विद ए शार्प नाइफ देन अ ब्लंट नाइफ बिकॉज द प्रेशर इज़ मोर। अब आपके पास नाइफ है, नाइफ का आपको मालूम है कि अगर वो उसका जो एजेस होते हैं नाइफ के अगर बहुत ज़्यादा शार्प हैं तो ऑब्वियसली वो फटाफट चीज़ों को चॉप कर देती, कट कर देती है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा ब्लंट है, तो इस केस में आपको चीज़ों को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा, और एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। वैसे ही शोल्डर बैग है ब्रॉड एंड नॉट थिन स्ट्रैप टू रिड्यूस प्रेशर। अब आप चीज़ देखो कि जो आपके शोल्डर बैग, स्कूल बैग्स होते हैं, उसमें जो स्ट्रैप्स होते हैं, जो हैंग शोल्डर जिसे आप हैंग करते हो, वो हमेशा फ्लैटन होते हैं। फ्लैटन क्यों होते हैं? ताकि इसका एरिया ज़्यादा होगा तो आपके शोल्डर के ऊपर प्रेशर उतना ही कम होगा। आप इमेजिन कर लो, अगर वो रोप का बना हुआ है और बहुत पतली सी रोप है, बहुत हार्ड है, सपोज जो नायलॉन की रोप आती है, सब मान लो उससे आपका वो बना हुआ है, तो उससे क्या होता है, आपके शोल्डर के ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा अगर बैग में वेट ज़्यादा है तो, ठीक है। बैग का वेट भी ज़्यादा है और आप वो पतली नायलॉन की रोप से अगर वो स्ट्रैप बने होंगे तो उस केस में क्या होगा, आपके शोल्डर के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा एंड यू माइट हैव फेल्ट दिस थिंग, राइट। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। अब हमको प्रेशर तो हमने पढ़ लिया कि प्रेशर होता क्या है, पर यूनिट एरिया में जितनी फोर्स लगती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रेशर। नाउ ये बोलते हैं लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर। अब हमको एक चीज़ मालूम है दैट लिक्विड इटसेल्फ इज़ नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर शेप, इट एक्वायर द शेप इन विच इट इज़ केप्ट। तो अगर आपने इसको किसी भी कंटेनर में, बॉटल में रखते हो, जग में रखते हो, कप में रखते हो, किसी कंटेनर में रखते हो, बाउल में रखते हो, फ्लास्क में रखते हो, तो जिस भी कंटेनर के अंदर हम उस लिक्विड को रखते हैं, कोई भी लिक्विड आप लिख सकते हो, तो उसकी वॉल के ऊपर जो है वो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ ए कंटेनर, ठीक है। एक तो इसकी बात करी हमने कि उसकी वॉल्स के ऊपर करता है, ये जो वॉल्स हैं इसके ऊपर करता है, और दूसरा ये जो बॉटम है इसके ऊपर भी ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। लेकिन बॉटम वाला जो प्रेशर है, ये जो यहाँ पे कितना प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा ये वाटर का कॉलम कितना है, सॉरी वाटर नहीं बोल सकते, लिक्विड की बात कर रहे हैं अगर हम, ये कॉलम कितना है, ये कॉलम अगर कम होगा तो ये बॉटम पे कम प्रेशर होगा, अगर ये कॉलम, ये वाला कॉलम ज़्यादा बड़ा होगा तो ये बॉटम के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ और बोली है इसने कि ये लिक्विड जो होता है सभी साइड्स पे, ये अगर बॉटल है तो इसकी ऑल साइड्स के ऊपर ये इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आपने क्या किया, एक बॉटल में यहाँ पे होल कर दिया, एक होल यहाँ कर दिया और एक होल यहाँ कर दिया, तो जब आपने इसके ऊपर वाटर डाला तो आप देखोगे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से ज़्यादा वाटर रिलीज़ हो रहा है, यहाँ से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से कम हो रहा है, या यहाँ से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से कम हो रहा है। इट विल नेवर लाइक दिस, व्हाट विल हैपन, इन ऑल द साइड्स ऑफ वाटर फ्लो विल बी इक्वल। अगर जो होल आपने किया उसका साइज़ इक्वल है तो, ठीक है, आपने जितना साइज़ का होल यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, तो उस केस में क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो भी, बिकॉज हमको मालूम है, अभी हमने पढ़ा प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर ये एरिया बड़ा होगा, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, वाटर का कम होगा। अगर ये एरिया कम है तो प्रेशर इसका ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने एरिया रखना है जहाँ से वाटर कम आउट हो रहा है वो इक्वल होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि जो भी वॉल्स की साइड्स भी जहाँ पे हमने छेद किया है, तो एक चीज़ से हमको पता चलती है कि लिक्विड जो होता है वो ऑल साइड्स पे, जिस भी कंटेनर में इसको रखो, सभी साइड्स, पूरी साइड पे वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। ये चीज़ है, जैसे आपने वाटर होस होती है, जैसे आप पाइप होती है, जैसे आप गार्डनिंग करते हैं, तो सम टाइम आप चाहते हो कि वाटर थोड़ा दूर तक जाए, तो आप क्या करते हैं, जहाँ से वाटर आउटलेट है, जहाँ से पानी निकल रहा है, जो एरिया है, तो आप उसके एरिया के ऊपर अगर अपना फिंगर रख दिया तो क्या होगा, पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो एरिया है जहाँ से वाटर कम आउट हो रहा है, आपने उस एरिया को कम कर दिया, और आपको मालूम है एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज दीज टू आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। पहले एरिया ज़्यादा था तो प्रेशर कम आ रहा था, आपने क्या कर दिया, एरिया को थोड़ा कम कर दिया, तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ गया। तो प्रेशर, तो वाटर का जो
बाहर आएगा उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा दूर तक वो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। लेकिन जो वॉल्स हैं उसके ऊपर वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, नाउ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ ए कंटेनर सेम वे। जैसे लिक्विड अपने, गैस का भी हमको मालूम है, इट डजंट हैव इट्स ओन shape. It also acquires the shape of the container in which it is kept, right? So जिस भी कंटेनर में आप इसको रखते हो ये उसी की शेप को अक्वायर कर लेता है। अब जिस कंटेनर में आप रखोगे तो उसकी वॉल्स पे भी वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। बहुत सिंपल एग्जांपल्स अगर आपको समझना है तो आप बलून का ले लो। ठीक है, तो जब बलून को आप एयर ब्लो करते हो उसके अंदर, तो थोड़ी देर तक जब जितना उसका हैंडल करने का उतना तक वो ब्लो होता है। लेकिन आपने ज़्यादा एयर ब्लो कर दिया, मतलब एयर का प्रेशर ज़्यादा दे दिया, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, वो बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जो हम एयर उसके अंदर डाल रहे हैं तो वो एयर जो होती है वो उस बलून की साइड्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस। देन कम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप बहुत सिंपल तरीके से अगर आपको समझना है तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। हमारे आसपास चाहे जिस भी जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, हमारे आसपास जो एयर है उस एयर का एक एनवेल्प है हमारे आसपास। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास बहुत सिंपल सा अगर आपको बताऊँ, ये आपकी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक एनवेल्प बना हुआ है एयर का। ठीक है, जिससे आपका ये अर्थ प्लैनेट जो है ये एक एनवेल्प बना हुआ है, एक ब्लैंकेट सा बना हुआ है जिसके अंदर सिर्फ एयर है। ठीक है, तो द एनवेल्प ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है ये कुछ किलोमीटर्स तक का इसका रहता है, मैनी किलोमीटर्स तक, ये अर्थ के सरफेस से कुछ किलोमीटर्स तक इसका रहता है, जिसको हम एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं। आप पढ़ा होगा स्ट्रेटोस्फेयर, लिथोस्फेयर, मीजोस्फेयर, तो डिफरेंट लेयर्स हैं इसकी। तो अर्थ के अराउंड का जो कुछ किलोमीटर तक जो एयर का वो रहता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो सिंपल डेफिनेशन, द एनवेल्प ऑफ एयर इज अराउंड अर्थ और अराउंड द अर्थ is known as the atmosphere. ठीक है, now the pressure exerted by this air is known as the atmospheric pressure. अब ये जो एयर होती है हमारे आसपास, ये हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है एक। ठीक है, हम लोग उसको फील नहीं कर पाते, लेकिन इट एक्सर्ट्स द प्रेशर ऑन आवरसेल्फ। तो दैट प्रेशर इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ें हैं जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग जैसे हाइट पे जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोगों को प्रेशर ज़्यादा, मतलब जितना डाउन जाएंगे तो हम ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं। जैसे ऊपर जाते हैं तो हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जितना हम हाइट पे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे।